Once again, welcome everybody present here. As you know that we have already started the chapter Climate of India, and then first of all we discussed about the meaning of climate as well as the meaning of weather. And after discussion in the first video lesson, we came to know that average weather condition of any given area, a larger area, for at least 35 of years of age is called as climate, and the state of atmospheric condition at any time at any place is known as weather. The elements of weather and climate are same, and the three important elements are temperature, water vapor, and wind. As you know that the climate of India is defined as that monsoon type of climate, and climate refers to the average weather condition. And average weather condition, it means in a given large area their weather conditions should be same, but it is not such types of situation. There is slightly change into the weather in terms of temperature and precipitation. तो एक खास इलाके का क्लाइमेट का नाम मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है, और एवरेज वेदर कंडीशन को ही हम जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं. तो आपके मन में विचार आएगा कि भाई जब एक ही क्लाइमेट है तो हर जगह वेदर कंडीशन सेम होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ रीजनल वेरिएशंस भी मिलते हैं वर्षा में और टेम्परेचर में. तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू visualize or how do you explain that there is regional variation in climate of India. तो हमारा टॉपिक है रीजनल डिफरेंसेस इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले हम टेम्परेचर का डिफरेंस देखेंगे कि इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, एंड बीइंग द one climate in all over India, there is some regional variation in temperature. But how is it? Let us see. In summer, the temperature in parts of Rajasthan desert is 50 degrees centigrade, and it is around 20 degrees centigrade in Pahalgam in Jammu and Kashmir. On a winter night, temperature at Dras in Jammu Kashmir may less than minus 45 degrees centigrade, and at Thiruvananthapuram it may be of 22 degrees centigrade. In some places, temperature between day and night temperature differs. In the Thar desert, it rises to 50 degrees centigrade in day and drop down to near 50 degrees centigrade in night. But in the Andaman and Nicobar Islands or in the Kerala, there is no much difference in day and night temperature. तो इसका मतलब क्या हुआ? We have to know about regional differences in the temperature, being the one climate, monsoon type of climate. तो यहाँ पर बतलाया गया है कि गर्मी का मौसम में इन द समर सीजन द टेम्परेचर इन पार्ट्स ऑफ थार डेजर्ट इन राजस्थान इज अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड. गर्मी के मौसम में राजस्थान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलता है. बट एट द सेम टाइम इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर द टेम्परेचर इज अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो गर्मी के ही मौसम में भारत के दो राज्यों में टेम्परेचर में डिफरेंसेस हो गया. राजस्थान में ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया, और उसी समय जम्मू कश्मीर में एक पहलगाम जगह है वहाँ मात्र 20 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है. मतलब एक ही क्लाइमेट के अंदर, एक ही मौसम के अंदर 30 डिग्री टेम्परेचर का मतलब अंतर आ गया. तो ये रीजनल डिफरेंसेस को बताता है. अगर हम जाड़े का मौसम का एग्जांपल लें, इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट ऑफ विंटर सीजन, अगर जाड़े के मौसम में रात के समय का टेम्परेचर लें तो द्रास एक जगह है जम्मू कश्मीर में, the temperature falls below up to minus 45 degree centigrade. But at the same time, in Thiruvananthapuram in South India, it is up to 22 degree centigrade. अगर जाड़े की रात का टेम्परेचर लिया जाए इंडिया में, तो द्रास कारगिल जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ रात का टेम्परेचर घटकर माइनस 45 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, जबकि उसी मौसम में तिरुवनंतपुरम में रात का टेम्परेचर मात्र 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, मतलब माइनस में तो जाता ही नहीं है. तो इसको पढ़ने से हमें क्या महसूस होता है? वी कम टू नो दैट इन समर सीजन इन राजस्थान देयर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बट एट द सेम टाइम इन द सेम मंथ देयर इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन पहलगाम इन जम्मू कश्मीर. इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ नाइट ऑफ विंटर सीजन, द टेम्परेचर फॉल्स बिलो अप टू minus 45 डिग्री सेंटीग्रेड in Dras and Kargil places in Jammu Kashmir, and at the same time there is 22 degree centigrade temperature in Thiruvananthapuram. अब डे और नाइट के टेम्परेचर का अगर हम अंतर लें कि एक दिन में सुबह और रात के टेम्परेचर में क्या अंतर होता है,
ड्यूरनल डिफरेंसेस इन नाइट एंड डे टेम्परेचर, दैनिक तापमान में कितना अंतर है, एक दिन के तापमान में कितना रहता है, तो डिजर्ट में ज़्यादा मिलता है। राजस्थान में डिजर्ट में टेम्परेचर दिन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, बट ड्रॉप डाउन टू नियर 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन नाइट। तो रात में घटकर 15 डिग्री तक आ जाता है और दिन में ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो मतलब 35 डिग्री का एक ही दिन में अंतर मिल जाता है, सुबह रात में और दोपहर में, सुबह 4 बजे होते होते। और लेकिन यही डिफरेंसेस अगर हम केरला वगैरह में देखें और अंडमान निकोबार में देखें तो वहाँ ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि वो समुद्र के बहुत नज़दीक है। So we find there are two types of differences in temperature. First, we find that in Rajasthan, the temperature in summer season is up to 50 degrees centigrade, but at the same time, in the same month, the temperature is found up to 22 degrees centigrade in Tiruvananthapuram. But if we take the example of night of the winter season, the Dras and Kargil area, the temperature drops down up to minus 45 degrees centigrade, but it is only up to 22 degrees centigrade in Tiruvananthapuram. As far as the diurnal day and night temperature difference is concerned, in Rajasthan, in daytime it is up to 50 degrees centigrade, but at night time it comes below, drop downs to 15 degrees centigrade. But in Andaman, Nicobar and Kerala, the difference is not much higher. Then also there is regional differences is precipitation. वर्षा में भी अंतर मिलता है एक ही मौसम में। Precipitation varies in its forms, types and amount seasonal distribution. तो मौसम के अनुसार भारत में एक अलग अलग क्षेत्रों में प्रेसिपिटेशन का रूप और उसका मतलब अमाउंट चेंज होते रहता है। इट इज़ इन फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय, इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर टाइप्स का बात किया जाए तो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होती है, मतलब वर्षा नहीं होती है, और पूरे देश में मतलब वर्षा होती है। अगर वर्षा की मात्रा में अंतर का देखा जाए, अमाउंट में देखा जाए, तो मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक साल में 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि भारत में ही वर्षा के मौसम में ही आपका राजस्थान है या लद्दाख है, वहाँ मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो रेनी सीजन में, being India a one country having one climate that is called monsoon type of climate, there is regional variation in rainfall. In Meghalaya it is up to 400 degrees centigrade rainfall, and in Rajasthan and Ladakh it is only up to 10 centimeter. So how drastic change we find in the same climate condition in the same month. And also most 90% of rainfall in India occurs in the month of जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब रेनी सीजन। ड्यूरिंग रेनी सीजन भारत में जो साल भर में वर्षा होती है वो 3-4 महीनों में ही सिमटी रहती है, जिसको रेनी सीजन कहते हैं। लेकिन एक हमारा तमिलनाडु का कोस्ट है, वो गर्मी में नहीं जाड़े में वर्षा प्राप्त करता है ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून, लौटते हुए मानसून से, और यहाँ अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। तो ये भी एक डिफरेंस है कि पूरे भारत में 90% वर्षा जो होती है बारिश के मौसम में होती है, लेकिन कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तटीय इलाके में अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। रेनफॉल, एक तो ये डिफरेंसेस मिला। दूसरा है रेनफॉल जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स पंजाब हरियाणा से शुरू होता है, फिर उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए आपका मतलब असम तक चला जाता है। तो इस इलाके में वर्षा की जो मात्रा है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। असम से कम बारिश हो गई बंगाल में, असम ईस्ट में है, उसके फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बंगाल में कम होगा, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बिहार में कम होगा, बिहार से थोड़ा कम उत्तर प्रदेश में होगा, और फिर पंजाब हरियाणा जाते जाते बहुत कम हो जाएगा। तो भारत के जलवायु में, क्लाइमेट में एक ये भी पैटर्न देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के जब मौसम यहाँ चलता है, तो उस समय नॉर्दर्न प्लेन जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है, उसमें ईस्ट साइड से वेस्ट साइड तक धीरे धीरे बारिश कम होते जाती है। इसीलिए इसका खेती पर भी प्रभाव पड़ता है। असम में, बंगाल में साल में 3-3 चावल की फसल ली जाती है, अमन ऑन्स बोरो, मतलब कि वहाँ चावल की खेती के लिए ज़्यादा बारिश चाहिए, तो वहाँ खूब बारिश होती है, तो 3-3 फसल। फिर धीरे धीरे पंजाब हरियाणा जाते जाते बारिश बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ गेहूँ की फसल ज़्यादा होती है, चावल उधर नहीं होता है। वैसे अब इरिगेशन फैसिलिटी से वहाँ चावल किया जा रहा है। भारत का सबसे बेस्ट क्वालिटी बासमती वही पंजाब हरियाणा में होता है। So we come to know that what are the regional differences in Indian climate, that is called monsoon type of climate, in terms of temperature and precipitation. You might be wondering
that is it possible? Yes, it is possible. You might be in confusion that it is called the average weather condition as a climate of any given area, and average weather condition should be somehow same. It should not differ place to place, it should not differ in the same season, but it happens, it do actually happens in India. We do find differences in terms of precipitation or rainfall and temperature in different parts of India in the same month, although India has a one climate that is known as monsoon type of climate. तो ओके, इसको हम लोग यहाँ तक समझ गए. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट वीडियो लेसन में अगले टॉपिक का चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्लाइमेट कंट्रोल्स. ओके.